السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر میں کلاس 12 کی کہکشاں کتاب سے چیپٹر نمبر 10 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ ابراہیم سقا افسانے کو پڑھیں گے۔ ساتھیوں، آپ کو یہ بات پہلے میں بتلا دوں کہ ابراہیم سقا یہ مضمون نہیں ہے، نہ ہی داستان ہے، نہ ہی ناول ہے، بلکہ ابراہیم سقا یہ ایک افسانہ ہے۔ اس کے لیکھک کا نام، اس کے رائٹر کا نام سلام بن رزاق ہے۔ اس لیے ہم لوگ سب سے پہلے سلام بن رزاق کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، انہوں نے دنیا میں رہ کر کون کون سے کارنامے انجام دیے۔ اس کے بعد ابراہیم سقا کے خلاصہ کو پڑھیں گے کہ اس کہانی کے اندر کیا کیا باتیں بتائی گئی ہیں، اور سب سے آخر میں اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات کو حل کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 12 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم لوگ سلام بن رزاق کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، انہوں نے دنیا میں رہ کر کون کون سے کارنامے انجام دیے۔ سب سے پہلے اگر سلام بن رزاق کی پیدائش کی اگر بات کی جائے تو سلام بن رزاق کی پیدائش 15 نومبر 1941 عیسوی کو مہاراشٹر کے پنویل میں ہوئی۔ سلام بن رزاق کی پیدائش 15 نومبر 1941 عیسوی کو مہاراشٹر کے پنویل میں ہوئی۔ ساتھیوں، ہمیں یہاں پر 2-3 باتیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ سلام بن رزاق کی پیدائش کب ہوئی، تو اس کا جواب ہے کہ سلام بن رزاق کی پیدائش 15 نومبر 1941 عیسوی کو ہوئی۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ سلام بن رزاق کی پیدائش کہاں ہوئی، تو اس کا جواب ہوگا سلام بن رزاق کی پیدائش مہاراشٹر کے پنویل میں ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ممبئی کے اسکولوں میں 15 برس تک استاد رہے۔ کون؟ سلام بن رزاق ممبئی کے اسکولوں میں 15 برس یعنی 15 سال تک استاد رہے، اور 1999 عیسوی میں وہ سبق دوش ہو گئے۔ یہاں بھی ہمیں 2-3 باتیں یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ سلام بن رزاق جو ہے ممبئی کے اسکولوں میں کتنے سال استاد رہے، کتنے برس تک، کتنے سالوں تک وہ استاد رہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلام بن رزاق جو ہے ممبئی کے اسکولوں میں 15 سالوں تک استاد رہے۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی وہ یہ کہ سلام بن رزاق جو ہے کب سبق دوش ہو گئے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ 1999 عیسوی میں سلام بن رزاق سبق دوش ہو گئے۔ اب اگر سلام بن رزاق کے پہلے افسانہ کی بات کی جائے تو ان کا پہلا افسانہ جو ہے 1964 عیسوی میں ان کا پہلا افسانہ شائع ہوا۔ سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ 1964 عیسوی میں شائع ہوا۔ آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ اس کو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، اور کئی سال پہلے اس کو ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے کہ سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ 1964 عیسوی میں سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ شائع ہوا۔ اب اگر سلام بن رزاق کے کتابوں کی بات کی جائے، ان کی تصانیف کی بات کی جائے، ان کے افسانوی مجموعے کی اگر بات کی جائے تو وہ یہ کہ سلام بن رزاق کے افسانوی مجموعے درج ذیل ہیں۔ افسانوی مجموعے کہتے ہیں کہ افسانہ کی کتاب، تو سلام بن رزاق کے افسانوی کتاب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ننگی دوپہر کا سپاہی۔ ننگی دوپہر کا سپاہی یہ 1977 عیسوی میں شائع ہوا۔ نمبر 2 میں ہے معبر، یہ 1987 عیسوی کو شائع ہوا۔ نمبر 3 میں ہے شکستہ بتوں کے درمیان، یہ 2001 میں شائع ہوا۔ تو سلام بن رزاق کے 3 افسانوی کتاب ہیں، 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ پہلے کا نام
नंगी दोपहर का सिपाही, ये 1977 ईस्वी में शाये हुआ। दूसरे का नाम मुअब्बर, ये 1987 ईस्वी को शाये हुआ। नंबर 3 में है शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये 2001 में शाये हुआ। अब अगर सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के एवार्ड की अगर बात की जाए तो वो ये है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ 2004 ईस्वी में शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए उन्हें यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी एवार्ड से नवाजा गया। साथियों, यहाँ पर हमें दो बातें याद रखनी है, वो ये कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ जो शिकस्ता बुतों के दरमियान एक किताब लिखे थे, तो इस किताब के लिखने पर साहित्य अकादमी अवार्ड कब दिया गया? तो इसका जवाब यह है कि 2004 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। दूसरी बात और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल इस तरह से बन सकता है, वो ये कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब लिखने पर कौन से अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका जवाब होगा कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। यहाँ तक हम लोगों ने सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के बारे में पढ़ लिए कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई, उनके अफसानवी मजमूए क्या क्या हैं, सारी बातें हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। अब हम लोग जो है इब्राहिम सक्का जो अफसाना है, इसके खुलासा को पढ़ेंगे, इसके कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे कि इस कहानी के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो इब्राहिम सक्का जो है एक क्या है? अफसाना है। इब्राहिम सक्का अफसाना का मुसन्निफ यानी लेखक सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की बहैसियत इंस्पेक्टर धोरन गांव स्कूल में नौकरी हो जाती है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की जो है इंस्पेक्टर के हैसियत से धोरन गांव स्कूल में नौकरी हो जाती है। धोरन गांव के एक गरीब लड़का था जिसका नाम इब्राहिम सक्का था। जिसका नाम क्या था? इब्राहिम सक्का था। उसको धोरन गांव के एक अमीर की बेटी से मोहब्बत हो जाती है। एक अमीर की बेटी से उनको मोहब्बत हो जाती है। लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होते। बिल आखिर ये लड़की अपनी जान गंवा बैठती है। चुनांचे उसको दफन कर दिया जाता है। किसको? उस लड़की को दफन कर दिया जाता है। उसके दूसरे दिन बाद ये इब्राहिम सक्का यानी जो गरीब लड़का था, उसी लड़की की कब्र में अपनी जान गंवा देता है। इसी वजह से इस अफसाने का नाम इब्राहिम सक्का रखा गया है। तो इसका खुलासा क्या हुआ? इसका खुलासा ये हुआ कि इब्राहिम सक्का एक अफसाना है। इसके लेखक का नाम, इसके राइटर का नाम, इसके मुसन्निफ का नाम सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की इंस्पेक्टर की हैसियत से धोरन गांव स्कूल में नौकरी हो गई। धोरन गांव में एक गरीब लड़का था, उसका नाम इब्राहिम सक्का था। उनको एक बहुत बड़े अमीर की बेटी से उनको मोहब्बत हो जाती है। और जब ये लड़का उनको शादी के बारे में बोलता तो उनके घर वाले यानी लड़की के घर वाले तैयार नहीं होते। बिल आखिर जो है लड़की अपनी जान गंवा बैठती है। उसके बाद दूसरे दिन बाद वो लड़का इब्राहिम सक्का उसी लड़की यानी अपने महबूबा के कब्र में अपनी जान गंवा देता है। इसीलिए जो है इस चैप्टर का नाम इब्राहिम सक्का रखा गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो कहानी का खुलासा हम लोगों ने पढ़ा, ये बहुत आसान अंदाज में आपने समझ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको जो है आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने इब्राहिम सक्का जो एक अफसाना था, इसके खुलासा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ से हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किस साल साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका जवाब होगा 2004 ईस्वी में। किन्हें सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को
साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। और दूसरा सवाल इस तरह से भी बन सकता है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को जो साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, किस किताब के लिखने पर उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा वो जो एक किताब लिखे थे सबसे आखिर में, उस किताब का नाम शिकस्ता बुतों के दरमियान। तो शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिखने पर जो है उनको इनाम मिला, उनको साहित्य अकादमी 2004 ईस्वी में उनको इनाम मिला। अब अगर सवाल नंबर 2 की बात की जाए तो सवाल नंबर 2 में है कि किन 2 ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ है? किन 2 ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ है, यानी किन ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अदबी ताल्लुक़ है? तो जवाब होगा हिंदी ज़बान से और मराठी ज़बान से। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को किन अदबी ज़बान से ताल्लुक़ था? तो इसका जवाब होगा 2 ज़बानों से इनका ताल्लुक़ था। नंबर 1 में है हिंदी और नंबर 2 में है मराठी। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़, यहाँ पर बिन के बाद रज़्ज़ाक़ छूट गया है, तो इसकी असल क्या होगा कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम लिखिए। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम लिखिए। नंबर 1 में है इसका जवाब इब्राहिम सक्का, जो आज के सबक में हम लोगों ने इसके खुलासा इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। नंबर 2 में है नंगी दोपहर का सिपाही। नंगी दोपहर का सिपाही ये कब शाये हुआ? ये 1977 ईस्वी को शाये हुआ। नंबर 3 में है शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये कब शाये हुआ? ये 2001 ईस्वी में शाये हुआ। तो सवाल नंबर 3 में ये पूछा गया कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम लिखिए, तो इसका जवाब होगा इब्राहिम सक्का। नंबर 2 में है नंगी दोपहर का सिपाही, नंबर 3 में है शिकस्ता बुतों के दरमियान। नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम लिखिए। सबसे पहले हम लोग किरदार असास के बारे में पढ़ते हैं कि किरदार असास किसे कहते हैं, इस लफ्ज़ का माना क्या है। तो किरदार असास कहते हैं मरकज़ी किरदार को, जो असल जिसका मेन किरदार होता है उनको मरकज़ी किरदार कहते हैं, या उनको मुसन्निफ लेखक राइटर भी कहते हैं, या उनको जो अफसाना का लिखने वाला होता है यानी मुसन्निफ लेखक। तो किरदार असार किसे कहते हैं? किरदार असास कहते हैं मरकज़ी किरदार, मेन किरदार, मुसन्निफ को कहते हैं किरदार असास। तो सवाल नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है कि 4 अफसानों के उन्वानात यानी 4 अफसानों के नाम लिखिए और उसके साथ साथ उसके राइटर के नाम भी लिखिए। तो पहले का नाम जो है लाजोंती, क्या है? लाजोंती। ये इसके राइटर का नाम राजेंद्र सिंह बेदी। नंबर 2 में है काली भंगी, इसके राइटर का नाम है किशन चंद्र। नंबर 3 में है परॉमिस, इसके राइटर का नाम है जिलानी बानू। नंबर 4 में है इब्राहिम सक्का, इसके राइटर का नाम क्या है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर को मुकम्मल पढ़ लिया। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब जो है बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों, 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यानी मुजाहिदुल इस्लाम आइडियल उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। वो नंबर यही है 9934753942। इस ग्रुप से जुड़ने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। आप रोज़ाना के टेस्ट दे सकेंगे और आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।